Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter executive, and under this we have discussed about the meaning of the executive, different types of executive like parliamentary system, then presidential system and semi-presidential system. The important features of all these systems have been discussed, and now we are discussing about the parliamentary form of executive which is adopted in our country. And in this regard, we have seen that in our country the president is the head of the state, and he performs the functions of the former head of the state. And in this regard, we have seen that the president is supposed to work according to the advice of the Council of Ministers. And we have also discussed there are some situations in which the president can use his discretionary power. There are some situations in which the president can use his powers according to his own wisdom and reason, without any aid and advice from the Council of Ministers. And after this discussion of discretionary power of the president, we came to understood that the post of president is not useless. Many times it is alleged that if the president has no real power, he is only there to put his signatures on the decisions which are taken by the Council of Ministers, then what is the need of the post of president? It should be abolished. Many times such kind of allegation is put कि ऐसा क्यों है, हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट की नीड क्यों है. So in this regard, it is important to understand that the post of president is very much important for the whole system, the government of India, because as we know, we have parliamentary system, and under this parliamentary system the prime minister holds his post only when he is getting the support of the majority in the Lok Sabha. The moment he loses the support of the majority in the Lok Sabha, he will no more be the prime minister, है ना, ये हम जानते हैं. तो in this situation कई बार इस तरह के conditions आ जाते हैं when prime minister loses the confidence of the majority of the people in the Lok Sabha. In that situation, what happens कि new prime minister is appointed. Who will appoint? The president will appoint. तो ये जो प्रॉब्लम, जो इनस्टेबिलिटी आ रही है जिसमें कि हेड ऑफ दी जो गवर्नमेंट है वो नहीं भी रह सकते हैं, कभी हुआ उनको मेजोरिटी का सपोर्ट वो नहीं मिल रहा है तो उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा और फिर एक नए किसी को बुलाना पड़ेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. तो ये दिस क्रिएट्स द नीड ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. इसके बिना, हम प्रेसिडेंट के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कैरी कर पाना. अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट व्हाट विल हैपन कि कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं बट ही अचानक सडनली इट हैपन्स कि he lost the support of the majority in the Lok Sabha. तो in that situation क्या होगा कि country will become without any head. There will be no head in the country. कोई head of the state नहीं होगा और head of the government नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने पोस्ट को से रिमूव हो चुका है because he has lost the majority, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी. और हेड ऑफ द स्टेट तो हमने रखा ही नहीं था हमारे सिस्टम के अंदर. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी. इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जरूरी होता है कि एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, एंड दिस हेड ऑफ द स्टेट इज आवर प्रेसिडेंट. ओके, so now we are discussing about the most important and most powerful post in India, and that is the Prime Minister. The Prime Minister is the most powerful authority in our country. In any parliamentary system of government, the Prime Minister is the most important authority. And we know that the Prime Minister heads the Council of Ministers. Council of Ministers is actually his team
है ना। वो अपनी टीम के साथ, जैसे एक किसी भी कंपनी का जो सीईओ होता है वो अपनी टीम के साथ वर्क करता है, तो वैसे ही इनकी भी टीम होती है जो कि जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, और इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। एंड वन मोर थिंग, वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन रिगार्डिंग दिस कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोक सभा बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर को ये जो सपोर्ट होता है लोकसभा का, लोकसभा के अंदर बहुत सारी पार्टीज होते हैं, उसमें से एक पार्टी जो होती है जो जिसको हम कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स होते हैं। लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी, इस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है he becomes the प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पीछे उनको किसका सपोर्ट होता है, उनको लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट होता है। एंड दिस सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। एंड ये उसको पावरफुल तो बनाता ही है, बट एट द सेम टाइम वी सी इफ द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द हाउस, he loses his office also, है ना। वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिस मोमेंट वो इस सपोर्ट को लूज करेगा उसी मोमेंट वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएगा, है ना। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए, और इस इलेक्शंस जो होते थे शुरू के अगर हम 3 इलेक्शंस को, स्पेशली 3 इलेक्शंस को देखें तो वहां हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी जिसके लीडरशिप में हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ, जिसके लीडरशिप में वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, वो कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन में रही फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस तक, 1952, देन 57, देन 62, जो भी इलेक्शंस हुए उसमें इनका काफी डोमिनेंट पोजीशन था, हमेशा कांग्रेस को ही मेजोरिटी मिलती थी। इवन 1967 के बाद भी जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस को ही एक मेजोरिटी पार्टी के रूप में सामने आई, कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनी। और ये कंडीशन जो है वो हम कह सकते हैं कि 1989 के पहले तक यही कंडीशन प्रिवेल कर रही थी, जिसमें कि बस एक इलेक्शन हमारा है 1977 का इलेक्शन, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो कांग्रेस थी उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है लोकसभा में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है 1977 में, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। बस उस एक अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हम यही देखेंगे कि जो 1952 से स्टार्ट होता है और ये 1989 तक चलता है, इस पीरियड में कांग्रेस का ही मेजोरिटी रहा। बस एक इसमें एक्सेप्शन है हमारा 1977 का इलेक्शन। इस 1977 के इलेक्शन के एक्सेप्शन को छोड़ के देखें तो 1952 से 1989 तक जो हमारे कांग्रेस थी वही सबसे मेजॉरिटी पार्टी जो थी वही बनकर के सामने आती थी। बट व्हाट वी फाइंड कि 1989 से सिचुएशंस जो थे वो चेंज होने स्टार्ट होते हैं। क्या चेंज होना स्टार्ट होता है कि 1989 के बाद से कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, बिकॉज कांग्रेस का जो वी कैन से कि जो इन्फ्लुएंस था लोगों पर, जो उनकी डोमिनेंस था जो इंडियन पॉलिटिक्स पे, वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। और 1989 के जो इलेक्शंस के रिजल्ट है वो इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर देते हैं कि देयर इज नो मोर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडिया में के पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया स्टार्टिंग होता है जिसमें कि कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट पोजीशन से नीचे आ जाती है, और कोई अदर पार्टी इज ऑल्सो नॉट देयर, नो अदर पार्टी इज देयर हु कैन टेक द प्लेस ऑफ कांग्रेस। हर पार्टी की कंडीशन खराब थी, एंड द रिजल्ट वाज कि नो पार्टी वाज एबल टू विन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशन हुई जिसमें कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है मेजॉरिटी का, इसके कारण एक नया कॉन्सेप्ट
इंडिया के लिए वो काफ़ी कुछ मतलब हमारे लिए नया था, बिकॉज इसके पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, बनी थी हालांकि कोalition गवर्नमेंट पहले भी, बट 1989 के बाद इट बिकेम द रेगुलर फीचर ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, जब किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारी मतलब मोर देन वन पार्टीज मिल करके एक अपना कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कई सारी पार्टीज मिल करके मेजोरिटी के सपोर्ट को सिक्योर करते हैं एंड आफ्टर सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी दे चूज देयर leader. That leader becomes the prime minister and then this prime minister chooses his ministers and form the ministry. तो इस तरह से कोalition गवर्नमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो इंडिया में 1989 के इलेक्शंस के बाद होती है। Though the ministers are appointed, they are formally appointed by the president, but actual decision is taken by the prime minister. The prime minister decides who will be the ministers in the council of ministers. It is completely his own decision. The prime minister is completely free to take his own decision कि किसको ministry में लेनी है, council of minister में किसको लेना है। Then after that what happens, the prime minister allocates ranks and portfolios to the minister. जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रैंक्स और पोर्टफोलियो जो दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। कि पोर्टफोलियो क्या हुआ, डिपार्टमेंट, लाइक किसको रेलवे मिनिस्टर बनाना है, किसको होम मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उनको पोर्टफोलियो देना, फिर उनको उनके रैंक्स में भी जैसे जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें वी कैन से कि एक आउटर सर्कल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि सारे के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और इसका जो इनर सर्कल होता है उसको हम कैबिनेट कहते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं मिनिस्टर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे ये कैबिनेट जो होता है वो फॉर्म होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और जब हम कैबिनेट की बात कर रहे होते हैं तो कैबिनेट में सिर्फ वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिनको दिया गया है, दे आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, देन डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दे ऑल फॉर्म द कैबिनेट। ठीक है, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। ये कौन डिसाइड करेगा, who will decide कि who will be given the rank of cabinet minister, who will be given the rank of state minister, ये all these decisions are taken by the prime minister। ये सारे decisions जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। सो वी कैन से कि हमारी जो मिनिस्ट्री होती है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें एक्चुअली 3 रैंक्स होते हैं, 3 रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट रैंक सबसे इम्पॉर्टेंट रैंक है, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं। एंड कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे जो होते हैं उनको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जो कि जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है किसी मिनिस्ट्री का, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट नहीं करनी होती। दे आर द इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज नहीं होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके वो हेड होते हैं, उनको हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं। और उसके नीचे जो थर्ड रैंक होता है वो क्या होते हैं, वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनको रिपोर्ट करनी होती है, और उनको दे आर नॉट हेड ऑफ द एनी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, वो किसी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के हेड नहीं होते हैं। उनको क्या किया जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही वो उनको अटैच कर दिया जाता है, उनके साथ वो एज अ असिस्टेंट वो होते हैं। तो वी कैन से कि इसमें 3 रैंक होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, दो इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि देयर आर डिफरेंट रैंक्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस फिगर। ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा सर्कल हमारा है, दिस इज
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं, ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। और इसका जो सबसे इनर सर्कल होता है, इसमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दे होल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके बाद के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। वो उनको स्मॉल डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट उसको दिया गया वो उसके इंचार्ज होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो उसको रन करते हैं। और उनके बाद जो होते हैं वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, दे आर नॉट गिवन एनी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इनको कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है। ये दे वर्क एज असिस्टेंट टू दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स। उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे होते हैं तो उस समय सारे के सारे मिनिस्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो जिस रैंक का होता है, किसी भी रैंक का। बट जब हम कैबिनेट की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर्स होते हैं वही उनकी ही बात कर रहे होते हैं। तो ये रैंक डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको कौन सा रैंक मिलेगा, द रैंक इज गिवन अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। जिसको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिल रही है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना। तो ये कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड प्रेसिडेंट इज देयर ओनली टू पुट सिग्नेचर, उसको कोई डिसीजन नहीं लेना है ना। डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली। Here you must also know the same type of functioning is there at the state level also. हमारे यहाँ स्टेट लेवल में भी यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं। जैसे अगर एक पूरी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, तो उसी तरह से अगर एक स्टेट के हिसाब से हम देखें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर की होती है। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, जो कि फॉर्मल हेड जिसको हम कहेंगे एक स्टेट के कंसर्न में। यहाँ पर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम यूपी को एक स्टेट कह रहे हैं और जब हम इंडिया को एक स्टेट कह रहे हैं तो क्या उनके बीच का डिफरेंस है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स कि पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में स्टेट का मतलब यही होता है कि जहाँ पर 4 एलिमेंट मौजूद होते हैं उनको हम स्टेट कहते हैं। लाइक जहाँ पर पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, एंड देन दिस गवर्नमेंट इज सॉवरेन। अगर ये चारों एलिमेंट हैं तो हम उसको स्टेट कहते हैं। तो हम जैसे यूपी को हम स्टेट कहते हैं, बट इन पॉलिटिकल साइंस इट विल बी रॉन्ग टू से यूपी अ स्टेट। तो जो भी हो, हमारा यूपी एक यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। इसमें भी जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही काम करता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं और फॉर्मल हेड के तौर पर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। बट हियर सम major difference is there between the role played by the president and the role played by the governor. We will discuss it. अभी लेटर पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि गवर्नर का जो रोल है वो स्टेट के गवर्नेंस में क्या होता है। ओके, तो हियर वी विल सी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसका वही काम होता है जो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो चीफ मिनिस्टर भी वैसे ही जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उन्हीं को जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की होती है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पार्टी को मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलता है वो पार्टी का जो लीडर होता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। एंड आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंट हिज मिनिस्टर्स। और वो भी उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरह ही अपने हिसाब से अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। उनको किसी दूसरे के लिए हिसाब से नहीं सोचने की जरूरत पड़ती है ना। और फिर हम ये भी देखेंगे कि वहाँ भी रैंक्स का वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि नेशनल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं
और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड इन दिस कनेक्शन वन मोर थिंग इज देयर कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये जरूरी होता है कि बोथ ऑफ देम, मतलब सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी न किसी हाउस का मेंबर उसको होना चाहिए। अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन तो जाएंगे। इफ द पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, तो वो किसी न किसी के मेंबर किसी न किसी तरीके से, मतलब अगर वो नहीं भी हैं मेंबर लोकसभा के या राज्यसभा के, तो वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स। लेकिन आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर दे हैव टू टेक मेंबरशिप ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months। ठीक है, जब भी वो अपॉइंट हुए एज प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, और सपोज वो नहीं है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो उस केस में उनको क्या करना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी हाउस का मेंबरशिप लेना जरूरी है। अगर वो नहीं ले पाते हैं मेंबरशिप तो क्या होगा कि फिर वो अपने पोस्ट पे नहीं रह पाएंगे। ओके, और ऐसा होता है हमारे कंट्री में, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन गए और वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, तो फिर बाद में उनको किसी हाउस का मेंबर बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो उस पार्टी को बिलोंग करने वाले जो एमपीज हैं, वो कोई एक एमपी अपना सीट खाली कर देता है रिजाइन करके, और फिर उस सीट पे इलेक्शन होते हैं उस सीट के लिए, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर एज ए कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं और फिर वो उस सीट को जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। जब मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो यही सिचुएशन हुई थी। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और जब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उनको राज्यसभा की सीट उनके लिए खाली की गई। उनके पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने राज्यसभा की सीट उनके लिए खाली की, और तब वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़के मेंबर बने थे पार्लियामेंट के, और इस तरह से उनका जो पोस्ट था वो वैलिड हुआ था। ओके, सो इस तरह से हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बनना, ये सब कुछ हो जाता है। और नाउ वी विल सी कि देयर वाज सम members in the Constituent Assembly who wanted that ministers should be elected by the legislature and they should not be selected by the Prime Minister or Chief Minister. When we are adopting this system in which the Prime Minister or the Chief Minister is selecting the ministers, तो ये थोड़ा डेमोक्रेटिक नहीं लगता है। इट सीम्स अनडेमोक्रेटिक। प्राइम मिनिस्टर हैज द प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट मिनिस्टर्स, तो ये इसको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ऐसा कई लोगों का ये व्यू था कि जो हमारा मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर्स के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो लोग हैं, उनको क्या होना चाहिए, उनको लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट करे। ठीक है, तो ये इस तरह के जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया है। जैसे अगर हम लोग स्विट्जरलैंड के सिस्टम को देखें तो इन स्विट्जरलैंड द सेम सिस्टम इज अडॉप्टेड। वहां पर जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करती है फॉर अ सर्टेन पीरियड है, और उसके बाद क्या होता है कि ये उतने ही पीरियड तक के लिए वो अपने पोस्ट पे रहती है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो उसको मतलब काफी अगर देखा जाए तो अच्छे सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है वहां कौन गया, वहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव गए, और फिर इन जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने फिर किसको चुना, एग्जीक्यूटिव को चुना। तो ये बहुत ही हाईली रिप्रेजेंटेटिव होगा। इट विल बी हाईली डेमोक्रेटिक कंडीशन ऑल्सो। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे बहुत लोग थे कि इस तरह का उनका व्यू था कि जैसा स्विस सिस्टम है वैसे ही सिस्टम को हमारे यहाँ भी अडॉप्ट किया जाए। और इस तरह में क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा सिस्टम होता है तो इसमें क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव होगी उसमें जो हाउस के सारे इंटरेस्ट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव में भी रिप्रेजेंट होगी। और
हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे ऐसे क्या होता है, लेजिस्लेचर में जो मेजोरिटी पार्टी होती है बस उसकी ही सरकार बनती है ना, बाकी जो अदर पार्टीज हैं उनका कोई सही नहीं होता है, गवर्नमेंट उनकी होती ही नहीं है, वो तो रूलिंग पार्टी सिर्फ मेजोरिटी की होती है। तो ये चीज़ नहीं आएगी, बल्कि हर जो political party है within this legislature, they will get representation in the executive also. तो this is the utility. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको नहीं अडॉप्ट किया, बल्कि हमने इसकी जगह पे अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिसमें कि हमने ये रखा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे मिनिस्टर्स को। अब यहाँ पर एक और बात आती है, साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड साइज के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, स्पेशली जब तक कांग्रेस का डोमिनेंस था तब तक साइज के रिगार्डिंग कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, लेकिन जब से कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ और कोalition गवर्नमेंट की स्टार्टिंग होती है, तब से हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज रहे। तो इस रिगार्डिंग अब कुछ अमेंडमेंट्स भी हो गए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज ऑफ ओके तो अब ये साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि 2003 में एक हमारा अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसको डिटरमाइन किया गया। सो थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी जो साइज है उसको फिक्स कर दिया गया। कितने पे फिक्स किया गया? ये इस तरह से फिक्स किया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोअर हाउस है, in case of union parliament it's lok sabha, in case of state legislature it's legislative assembly। तो ये जो लोअर हाउस है, इस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 15%, बस इतने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा मिनिस्टर वाज नॉट अलाउड। ओके, सो थ्रू दिस 91st अमेंडमेंट एक्ट ओके ये 91st अमेंडमेंट एक्ट से ये किया गया कि जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसको कहा गया कि इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोअर हाउस। ओके, आखिर ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, क्या हो गया, क्यों ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, एज आई टोल्ड यू, 1989 के पहले तक जब तक कि कांग्रेस का डोमिनेंस था प्रॉब्लम नहीं थी। एक सिंगल पार्टी जो थी उसको मेजोरिटी मिलती थी, आराम से एक जो भी उनका लीडर हुआ वो प्राइम मिनिस्टर बनते थे, और प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते थे। लेकिन जब 1989 के बाद कोalition गवर्नमेंट की जो एरा की जो स्टार्टिंग होती है हमारी कंट्री में, उसके साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि मिनिस्ट्री की साइज बहुत बड़ी होने लगी। क्यों बड़ी होने लगी? क्योंकि कोalition है, बहुत सारी पार्टीज मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और वी ऑल नो कि हमारे पॉलिटिक्स बहुत इमोरल हो जाता है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसमें कुर्सी की लड़ाई होती है, पोस्ट की लड़ाई होती है। तो अब जो भी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर जो भी बनते हैं अंडर द कोalition गवर्नमेंट, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फ्रॉम ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टीज। जो भी कोalition के कंस्टिट्यूएंट पार्टीज हैं उनकी तरफ से उन पे बहुत प्रेशर आता है कि हमारी पार्टी के इतने मेंबर को आप मिनिस्ट्री दीजिए, मिनिस्ट्री में रखिए, अगर नहीं रखेंगे तो हम सपोर्ट नहीं देंगे। इस तरह का प्रेशर उनके ऊपर आता है। तो ऑब्वियसली जब इस तरह का प्रेशर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर ही विल सेटिस्फाई देयर डिमांड,
और इस तरह से क्या हुआ कि साइज जो है वो हमारे कंट्री में बढ़ने लगी। लोकसभा के जो मिनिस्टर्स थे उनकी साइज बढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबको साथ लेके उनको चलना है अंडर द कोalition गवर्नमेंट। लेकिन ये बड़ा जो साइज होता जा रहा था उसके कारण कई तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और ये समझ में आने लगा कि ये जो चीजें हैं ये इट इज ओनली फॉर पावर, ये पावर की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई हो जा रही है, और अंडर प्रेशर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इस अमेंडमेंट एक्ट से यही हुआ कि खत्म कर दिया गया। नहीं, 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सपोज वी नो कि हमारे जो लोकसभा है उसकी जो मेंबरशिप है वो 543 है। अब इस 543 का 15% से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 82 मैक्सिमम, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ठीक है। तो इस तरह से ये इसको फिक्स कर दिया गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस द another part of the chapter in the next class.